Welcome back to Pharmistic. So in this video series, we are going to discuss complete organic chemistry roadmap for NIPER 2026. Most of the videos online just list down the important topics. But for NIPER, knowing the topic is not enough. We need to understand that what type of question is really expected from that topic. So in this particular video series, we are going to dive deeper into each topic and understand that what really NIPER expect from us. So before wasting any time, my name is Sahil Gupta. I have qualified GPAT with All India rank 314 and NIPER with All India rank 504. So let's start. So in this particular video series, we are going to cover seven core topics of organic chemistry, which are very important from NIPER point of view. So in this video series, we are going to cover hybridization, electronic effects, reaction intermediates, reaction mechanism, isomerism, aromaticity, and hydrocyclic compounds. We'll understand in each topic basic concepts, question angle, what are the questions which are really asked in NIPER exam, and we will solve some PYQs. This will be the flow for particular topics. And the flow for this is will be the same. First, we will study the hybridization. In hybridization, we will understand the shape and geometry of the molecule. In electronic effects, we will understand that why one carbon is more reactive than another carbon. In reaction intermediates, we will understand how this reaction intermediates like carbocation, carbanion, free radicals are influencing the final product. Then we will study the whole reaction mechanism, substitution reaction, addition reaction, rearrangement reaction, and elimination reaction. How this take place, we will understand that. Then we'll understand aromaticity. What is the stability of the compound? And finally, we will understand some basic concepts of hydrocyclic compound, which is very important for medicinal chemistry. So in this particular video, we will be focusing on a foundation topic, hybridization. So let's start. So our foundation topic is hybridization. In simpler terms, it is the mixture of atomic orbital. Means when two atomic orbital like S and T is mixed, we get one hybrid orbital. This is known as hybrid orbital. And phenomena is known as hybridization. NIPER में question definition से नहीं आता. What they really expect us to know is that what is the correlation with bond angle, bond strength, S character, shape of the molecule, and comparison. In bond angle, they will ask arrange in increasing or decreasing order of bond angle. In bond strength, they will ask which molecule has strongest bond. What are the percentage of S character in particular molecule? What is the shape of the given molecule? And finally, very important, they will ask hybridization state. So क्वेश्चन इसी में से बनते हैं, इसके अलावा क्वेश्चंस नहीं आते. फर्स्ट दे विल आस्क बॉन्ड एंगल, बॉन्ड स्ट्रेंथ, एस कैरेक्टर, शेप ऑफ द मॉलिक्यूल और कंपैरिजन. दैट्स इट, हमें बस इतना ही पढ़ना है. We will understand with one example and we will correlate all the parameters to it. So let's start. Now we will correlate hybridization with bond strength and bond length. जिसका परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर ज्यादा, उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बट उसका बॉन्ड लेंथ काफी कम. लेट्स सी वन एग्जांपल. जब हम इसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकालेंगे तो इसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कैसे निकलेगा? सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर. ये कार्बन के पास कोई भी लोन पेयर नहीं है, एक सिग्मा बॉन्ड इधर, एक सिग्मा बॉन्ड इधर. दो सिग्मा बॉन्ड का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होता है sp. जब हम इसका निकालेंगे हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, इसका निकलेगा वन सिग्मा बॉन्ड टू थ्री. जब तीन सिग्मा बॉन्ड आता है तो sp2. एंड इसका निकालेंगे एक दो तीन चार, तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट वुड बी sp3. एस परसेंटेज काफी ज्यादा है 50%, तो इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ काफी ज्यादा रहेगा.
बट बॉन्ड लेंथ काफी कम। ये याद रखो कि ये मम्मी पापा जैसे होते हैं, जो काफी क्लोज रहते हैं, उनका डिस्टेंस काफी कम है लेकिन बहुत स्ट्रांग बॉन्ड है। एंड ये आप याद रख सकते हो कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, ये इंडिया में रहता है एंड ये पाकिस्तान में रहती है। तो डिस्टेंस काफी ज्यादा है एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ काफी कम है। तो हमें ये पता चल गया कि एसपी का बॉन्ड स्ट्रेंथ काफी ज्यादा रहता है एज कम्पेयर टू sp2, एज कम्पेयर टू sp3, बॉन्ड स्ट्रेंथ। बट बॉन्ड लेंथ इज वाइस वर्सा। sp3, जो इंडिया पाकिस्तान का एग्जांपल दिया मैंने, इज वेरी लॉन्ग एज कम्पेयर टू sp2 एंड एज कम्पेयर टू sp, मम्मी पापा जैसे। बॉन्ड लेंथ काफी कम है लेकिन बॉन्ड स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है। नो, अभी आपको सब रिलेशन पता चल गए रहेंगे कि बॉन्ड एंगल का क्या रिलेशन है, बॉन्ड स्ट्रेंथ का क्या रिलेशन है, एंड बॉन्ड लेंथ का क्या रिलेशन। नाउ लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस। So now let's understand with questions. The first question asks us to arrange in increasing order of bond strength. Bond strength. मम्मी पापा वाला एग्जांपल याद आ जाना चाहिए। मम्मी पापा काफी क्लोज हैं क्योंकि उनका डिस्टेंस काफी कम है और ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है एज कंपेयर टू दिस, एज कंपेयर टू दिस। तो ट्रिपल बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर टू डबल बॉन्ड एंड एज कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड। अभी देखना है कि ट्रिपल बॉन्ड किस पे ज्यादा है। इथीन इज ट्रिपल बॉन्ड, इथीन इज डबल बॉन्ड एंड इथीन इज सिंगल। सो आवर करेक्ट आंसर वुड बी ए, सी। इतना इजी क्वेश्चन पूछा जाता है, बस आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन ये देखते हैं, विच हैज द लार्जेस्ट बॉन्ड एंगल। मैंने एक रिलेशन बताया था, जितना ज्यादा एस कैरेक्टर उतना ज्यादा बॉन्ड एंगल। अभी हमें जानना है, अभी हम पता करेंगे कि इसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है। अगर क्वेश्चन में आपको ये नहीं दिया हो तो हमें आना चाहिए कि कैलकुलेट कैसे करते हैं। फर्स्ट इज 1 2 3 NH3, वी नो दैट N हैज लोन पेयर। सेकेंड वन इज H2O, वो के पास दो लोन पेयर है। थर्ड वन इज BF3 एंड फोर्थ वन इज मीथेन। हमें एक फॉर्मूला पता है हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकालने का, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। इधर एक लोन पेयर है, ओके। हाइब्रिड ये सिग्मा बॉन्ड कितना है, 1 2 3, 3, टोटल वुड बी 4। जब भी 4 आता है हमें पता है कि हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3 होता है। इसका परसेंटेज ऑफ s इज 25%, विच इज वेरी लीस्ट। अब ये कैलकुलेट करते हैं, इसके पास एक लोन पेयर, दो लोन पेयर, 2 प्लस 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 2। हियर ऑल्सो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट इज sp3। इसका s परसेंटेज 25% है, विच इज लीस्ट। BF3, इसके पास कोई भी लोन पेयर नहीं है बट 3 सिग्मा बॉन्ड है। व्हेन द हाइब्रिडाइजेशन इज 3, वी नो दैट हाइब्रिडाइजेशन स्टेट इज sp2। यहाँ पे s कैरेक्टर इज 33%। अब ये जान लेते हैं फोर्थ का क्या है, 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड। लोन पेयर नहीं है, तो आंसर वुड बी sp3। यहाँ भी s कैरेक्टर 25% है। तो जितना ज्यादा s कैरेक्टर उतना ज्यादा बॉन्ड एंगल। तो हमारे क्वेश्चंस में बस इसी का बॉन्ड एंगल काफी ज्यादा है क्योंकि इसका परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर काफी ज्यादा है। तो आंसर वुड बी सी। एक और चीज याद रख लो, जब भी लोन पेयर आ जाते हैं एटम में, बॉन्ड एंगल रिड्यूस हो जाता है 2 to 3 डिग्री। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता कि इसमें से सबसे कम बॉन्ड एंगल किसका है, तो हमें पता चल जाता कि H2O का, क्योंकि इसके पास दो लोन पेयर है। लोन पेयर है तो रिड्यूस हो जाता है बॉन्ड एंगल 2 to 3 डिग्री। एन के पास भी लोन पेयर है, बस एक है, बट इसके पास दो है, तो इसका सबसे कम बॉन्ड एंगल होगा। होप सो यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। सो हाइब्रिडाइजेशन से इतने ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इतना ही कंसेप्ट आपको याद रखना है। मैंने नेक्स्ट स्लाइड में आपके लिए कुछ फैक्ट्स लिख के रखे हैं, जस्ट उसका स्क्रीनशॉट ले लिए एंड वो नाइपर के लिए काफी हेल्पफुल होगा। आपको नोट डाउन करके रखते हैं। आप अगर एग्जाम के पहले अगर यही
देख के जाते हैं तो आपके 1 से 2 क्वेश्चंस डेफिनेटली बनते हैं जो कि नाइपर हर साल पूछता है। Hope so you understood this whole video of hybridization. Thank you for watching this video. Keep studying, keep learning, and subscribe to Pharmastic.